have to do controlled ovarian hyperstimulation and how. So now ये हम पढ़ेंगे. So what should be your clinical approach when it comes to ovulation induction? But for that you should understand the causes of anovulation. The four most common causes of ovulatory disorders are, first and foremost is PCOS, second is hypogonadotrophic hypogonadism, third one is primary ovarian insufficiency, and fourth one you see hyperprolactinemia. That is why prolactin is must in the evaluation aspect. So when you all can do unstimulated, जरूरी नहीं है कि आपने IUI के लिए लिया तो must है. So these are the indications. When you can do natural cycle IUI in cases of ejaculatory dysfunction, है ना. बहुत सारे couples आते हैं. Vaginismus, अभी भी 21st century में we do get patients of unconsummated marriage. 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, इतना severe vaginismus है कि even she is not even lying down in that position, she is not allowing to examination. तो बहुत दूर की बात है, she is not even allowing you to touch. इतना सिवियर वजाइनिस्मस हमने देखा है. सर्वाइकल फैक्टर स्टैंड अलोन बहुत कम है, बट दीज आर द 3 इंडिकेशंस जहां पे आप स्टिमुलेट नहीं करें तो चलता है. आई मीन वी डोंट स्टिमुलेट. ठीक है. नाउ ओव्यूलेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रायर टू इफ यू आर डूइंग नेचुरल साइकिल देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट द ओव्यूलेशन बिफोर यू गो फॉर IUI, एंड द बेस्ट वे टू डॉक्यूमेंट इज ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड. और you can do LH kit. सभी पेशेंट पढ़े लिखे होते हैं. You can teach them how to use the urinary kit. Once the LH surge is documented, IUI is performed the next day. So this is how you will be monitoring your unstimulated cycles. First preference will be LH kit. Now ovulation induction is method for treating anovulatory infertility. The WHO has classified them into 3 groups, group 1, group 2, group 3. Group 1, gonadotropin levels are low. This is hypothalamic pituitary failure. Group 2, gonadotropin levels are normal. This is hypothalamic pituitary ovarian axis failure. And group 3 is gonadotropin levels are high. The cause is ovarian failure. So this is from up to date. That is polycystic ovarian syndrome. This is the most common cause of ovulatory disorder where they come to us and we do controlled ovarian hyperstimulation, that is COH for them. But whenever I talk of COH, you all should know that all the guidelines are emphasizing the lifestyle modification as the first line approach before you take them for ovulation induction. So I am not covering that lifestyle approach here, but it is understood that it is the lifestyle, then letrozole, then gonadotrophins, and then IVF. When it comes to primary ovarian insufficiency, which accounts for 5 to 10% cases of anovulation, of course here they have the option of donor cycle. That is how we counsel कि आपको ovarian failure है, no reason to be disheartened. 50% जेनेटिक मटेरियल आपका ही होगा. Go for IVF, take donor oocytes. We will use your husband's sperms. Embryos will be transferred in your uterus. You will be the mother of the child. Only thing is that eggs will not be yours. So they do have option. तो negative counseling ना करें. दूसरा, don't forget to counsel them for an increased risk of osteoporosis and cardiovascular disease later in life. This is your responsibility. Whether she can afford donor cycle or not, whether she is willing or not, that's an entirely different chapter. But as a gynecologist, it is your responsibility to take care of the sequelae of this POI. Hyperprolactinemic anovulation again accounts for 5 to 10%. And the moment you treat, they start ovulating. You don't have to go for any further treatment and they become pregnant. So what are the goals of your ovulation induction? These are very, very idealistic goal, जो practice में possible नहीं है, पर theoretically we say that we want one follicle, ovulation, single pregnancy and a healthy newborn. This is our goal. What are the general principles? For general principles, they are based on the underlying cause of anovulation, the efficacy and cost of the drug,
and potential complications which applies to that particular method, that too which applies to that particular woman, है ना. उसका BMI ज़्यादा हो सकता है, उसको कुछ कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, तो हर वुमन का कॉम्प्लिकेशन सेम नहीं होगा. सो इट हैज टू बी अ individual counseling, couple to couple counseling. Preconception counseling is my favorite slide because when we do infertility practice, we have this golden opportunity and do the preconception counseling for these women. It is nothing, a very, very basic, simple test, which in any way you are doing. You are doing BMI, taking BP, lifestyle counseling, start folic acid supplementation, anemia correction, sugar, thyroid correction of any endocrine factor, thalassemia screen and vaccination. Now coming to the ovarian stimulation protocols. This is in our basket. Clomiphene, letrozole, CC plus gonadotrophins, letrozole plus gonadotrophins and gonadotrophins standalone. कोई भी मेथड यूज करें, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? स्टार्ट योर स्टिमुलेशन ऑन डे 2 और डे 3 ऑफ द साइकिल. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आप देंगे तो यू विल बी एबल टू रिक्रूट द न्यू फॉलिकल्स. एक बार रिक्रूटमेंट हो गया और फिर आपने डे 6 डे 7 को दिया तो न्यू फॉलिकल तो आप रिक्रूट नहीं कर पाओगे. सो इट इज वेस्ट, क्योंकि जो ऑलरेडी रिक्रूट हो गए हैं उन्हीं का ग्रोथ होगा. सो द बेसिक प्रिंसिपल इज start them on day 2 और day 3 of the cycle. क्लोमिफेन नए जनरेशन ने इतना नहीं देखा होगा, पर जो हमारा जनरेशन है, this is in practice since last more than 55 years, very simple to use, cost effective with very less complications. जो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो है we start with 100. Guidelines are telling you start with 50, then increase it in the increment of 50. तो वैसा नहीं करते हैं. If you want to use clomiphene in your practice, start with 100. And if she is not ovulating with your 100, next cycle you go with 150. 150 के ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं. Again, there are some studies and some literature because anti-estrogenic effect उसका इतना profound होता है कि we don't gain anything in terms of pregnancy rate. So 100 and 150. This is the mechanism of action of clomiphene citrate, and before you go ahead and stimulate her with either clomiphene or letrozole, you have to rule out the disorders of pituitary, adrenal and thyroid. क्योंकि आप जैसे ही इनको करेक्ट करोगे, she will start ovulating. This is when to start. We start from day 2 or day 3. We give for 5 days. This is the dose. And the American Society is telling us that don't go beyond 100 क्योंकि उसके बाद एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट बढ़ जाता है. But if you want, you can go max up to 150. What is CC failure and CC resistance? Failure of ovulation is clomiphene resistance, and failure of pregnancy despite ovulation is clomiphene failure. तो ये हमको पता होना चाहिए. When you should stop CC? आप लोग तो यूज ही नहीं करते हो, पर फिर भी अगर पहला कुछ गत्था और पोठी आती है तो अमेरिकन कॉलेज इज सेइंग इन हर एंटायर लाइफ टाइम शी शुड नॉट टेक मोर देन 12 साइकिल्स ऑफ सीसी बिकॉज ऑफ द एप्रीहेंशन ऑफ ओवेरियन कैंसर. हाउ टू मॉनिटर? LH urinary kit is one thing, and transvaginal sonography I will be telling you in my next presentation. Now with clomiphene, you can expect an ovulatory rate of 80%, but cumulative pregnancy rate of 30 to 40%. Of those who ovulate, approximately 50% will ovulate at dose of 50, another 20 to 25% will ovulate at the dose of 100, and another 10% might ovulate at the dose of 150. There is no benefit of increasing the dose beyond 150. Why pregnancy rate is low as compared to the ovulation rate? You all know it is because of the anti-estrogenic effect on the endometrium. Whenever you are prescribing any drug, you should know the side effects as well, है ना. ऐसा नहीं हम जेम्स की गोली की तरह उसको लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं और कोई पेशेंट आ गया, मुझे तो हॉट फ्लशेस हो रहा है, मुझे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, पेन हो रहा है, और फिर आप बोलो नहीं 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 नहीं,
इसके कारण तो कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है. Every medicine has got their share of side effects. Hot flushes can be seen in 10 to 20%. Additionally, some women can have abdominal distension, pain, nausea, vomiting, breast discomfort, है ना? कुछ लोग बोलते हैं. Mood swings, depression and headaches can also occur with clomiphene citrate. साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोमिफेन आर नॉट डोज रिलेटेड. हाँ, 50 mg में भी हो सकते हैं, 150 mg में भी हो सकते हैं, और 1% को सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंसेस लाइक ब्लरिंग एंड डबल विजन. तो ये हमें पता होना चाहिए. बट द मोमेंट यू स्टार्ट सीसी, all those side effects are reversible side effects including visual disturbances. So that was all about the clomiphene. Now is the letrozole. It is the third generation aromatase inhibitor. This is the mechanism of action of letrozole. What is the standard regime which we follow in our clinical practice? Typically, it is between 2.5 to 7.5. इधर जो इंक्रीमेंट होता है वो है 2.5. क्लोमिपेन में 50 का होता है, इधर 2.5 का होता है. स्टार्टिंग सेम लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट. बहुत सारा स्टडीज है वेयर दे हैव गिवन इट फॉर 10 days, 15 days, they have given more than 7.5, but in clinical practice we don't go beyond 7.5. Typically we start 2.5 mg HS. If we don't get any response, next cycle we give 2.5 mg BD to her. Higher doses are also here also they are associated with thin endometrium. This is just for the completion of my talk. I have included these slides, but in clinical practice, it is not recommended. Now, what are the advantages of letrozole? Why letrozole has become the #1 drug over clomiphene citrate? Because of its short life. Because in standard doses, if you are not going beyond 7.5, it does not have any antiestrogenic effect on the endometrium. Blood flow is increased. OHSS risk is less, multiple pregnancy risk is less with letrozole. That is why we all have shifted to letrozole as the choice of drug when it comes to oral ovulation. When BMI is more, all the studies are telling you to go ahead and do letrozole stimulation and not CC cycle. This slide I like to tell to all the participants in ICOG courses, in IUA workshops, everywhere. क्योंकि हम लोग सोचते हैं सीसी दिया ना, लेट्रियोजोल दिया, लेट्रियोजोल से तो एक ही फॉलिकल तैयार होता है. बट लुक एट दिस स्लाइड. दिस केस रिपोर्ट इज डॉक्यूमेंटेड इन द लिटरेचर. दिस लेडी डिलीवर्ड sextuplets आफ्टर टेकिंग लेट्रियोजोल. तो सबको पता होना चाहिए. इवन क्लोमिफेन, रेयरली क्लोमिफेन कैन ऑल्सो गिव यू OHSS, लेट्रियोजोल कैन ऑल्सो गिव यू OHSS. So whenever you are giving clomiphene or letrozole, follicular monitoring is must. अभी भी बहुत सारे लोग just clomiphene and letrozole दे देते हैं and they just tell them to go ahead and do planned intercourse without doing any follicular monitoring, which we should not do. क्योंकि rarely ही क्यों ना हो, they are also known to cause OHSS. लेट्रोजोल के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉट फ्लशेस, फटीग एंड डिजीनेस. सो ओरल ओव्यूलेशंस इज क्लियर. अभी गोनाडोट्रोफिन्स पे आते हैं जहां हर एक को डर लगता है ना. IUI में नोबडी वांट्स टू डू गोनाडोट्रोफिन साइकिल फॉर द फियर ऑफ OHSS. और सेकेंड नंबर पे मल्टीपल प्रेगनेंसी. पर ऑब्स्टेटिशियंस हो तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का किसी को भी डर नहीं लगता है. डे इन एंड डे आउट यू ऑल आर मैनेजिंग. पर OHSS नहीं चाहिए होता है. तो आप बात करते हैं गोनाडोट्रोफिन साइकिल, क्योंकि ये वर्कशॉप के बाद में आप लोग कॉन्फिडेंटली, आई एम श्योर यू ऑल विल स्टार्ट डूइंग गोनाडोट्रोफिन स्टिमुलेशन इन योर डे टू डे प्रैक्टिस. सो कौन कौन से गोनाडोट्रोफिन से जो हमको अवेलेबल है मार्केट में, फार्मा वाले आके पढ़ाते रहते हैं. HMG, यूरिनरी HMG, देन हाईली प्यूरिफाइड HMG, यूरिनरी FSH, हाईली प्यूरिफाइड FSH एंड रिकॉम्बिनेंट FSH. मार्केट भरा पड़ा है उससे. जब आप सोच रहे हो, अभी सोच रहे हो, सिर्फ यूज नहीं किया है, तो क्या क्या सोचोगे गोनाडोट्रोफिन्स के पहले, लेने के पहले? ऑफ कोर्स कॉस्ट. आपकी पेशेंट अफोर्ड कर पाना चाहिए. पर अभी गोनाडोट्रोफिन्स के कॉस्ट बहुत कम हो गए हैं. ठीक है,
एक्सपर्टीज ज्यादा कुछ नहीं लगता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है जो हम आपको बताएंगे, बट शी शुड बी एबल टू कम टू यू एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, तो आप उसको बुलाओगे ही बुलाओगे, एंड यू शुड नो द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड OHSS। कौन सा गोनाडोट्रोफिन यूज करोगे? अभी मैंने 5 प्रकार के बताए। अगर आप जितने भी स्टडीज देखोगे, नॉट ओनली IUI, इवन IVF, आई एम यूजिंग यूरिनरी HMG, सारे पेपर आप ASRM का उठा लो, ईशरे का उठा लो, फर्टिलिटी स्टर्लिटी उठा लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उठा लो, everyone is saying urinary HMG is good enough. Your clinical pregnancy rate does not depend on whether you are using urinary HMG or highly recombinant FSH, क्योंकि IVF में तो अगर हम हाईली रिकॉम्बिनेंट FSH यूज कर रहे हैं तो हमको LH भी देना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, HMG में FSH LH है, उसको बाजू में रख दिया, हाईली रिकॉम्बिनेंट FSH दे रहे हैं, फिर बाद में हम LH भी ऐड कर रहे हैं, तो हम तो कॉस्ट उसका मल्टीफोल्ड कर दिया है। तो विदाउट एनी गिल्ट सीना ठोक के बोलना, हम यूरिनरी HMG यूज करते हैं, एंड यूरिनरी HMG बहुत सस्ता है, हर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, ये 2 ही प्रॉब्लम है, इसको कैसे काउंटरएक्ट करना वो हम बताएंगे। अब सबको स्टार्टिंग डोज का बहुत क्वेरी होता है ना, कौन सा स्टार्टिंग डोज दे? तो आपका स्टार्टिंग डोज डिपेंड करता है एज ऑफ द वुमन, AMH, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, और अगर वो कहीं से पहले गोनाडोट्रोफिन साइकिल करके आई है या आप ही ने की है, तो रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस गोनाडोट्रोफिन साइकिल, ये चीजें आपको बताएगी कि आपका स्टार्टिंग डोज क्या होना चाहिए। तो पहले मैं थेरोटिकली आपको कन्वेंशनल प्रोटोकॉल बताती हूँ, स्टेप अप स्टेप डाउन बताती हूँ, और फिर एकदम सिंप्लीफाइड प्रोटोकॉल बताती हूँ, क्योंकि वही आपको याद रखना है। तो ये कन्वेंशनल प्रोटोकॉल है जहां पे ये लोग 150 से शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लोग शुरू कर रहे हैं, एंड एवरी 7 weeks दे आर इंक्रीजिंग द dose. This is conventional gonadotrophin stimulation protocol. यहाँ पे ये लोग estradiol E2 भी मॉनिटर करते हैं, जो हम नहीं करते हैं। रूटीन गोनाडोट्रोफिन साइकिल जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे उसमें E2 करने का भी जरूरत नहीं है। अनदर जो थेरोटिकली यू ऑल शुड नो इज लो डोज स्टेप डाउन प्रोटोकॉल। हायर डोज से शुरू कर दिया है उन्होंने, स्टेप डाउन नहीं, स्टेप अप। मैं बहुत आगे क्यों चले गई हूँ, एक सेकेंड, इधर आ रहे, इसको फुल स्लाइड कर दे। कन्वेंशनल है, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है। एज द नेम सजेस्ट, स्टेप अप में आप लोअर से चालू करके हायर कर रहे हो, विच सम सेंटर्स दे डू। स्टेप डाउन इज बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि वहां पे आप हायर से चालू कर रहे हैं, देन यू आर डिक्रीजिंग द डोज। तो स्टेप डाउन तो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं होता है, बट दैट इज ओनली फॉर योर नॉलेज कि ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं। अब सबसे सिंप्लीफाइड जो आपको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज में लाना है वो ये वाला है। दिस इज द स्टार्टिंग डोज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स फॉर नॉन IVF साइकिल। If she is less than 35 years, non-PCO, confidently start with 150 from day 2. If she is PCO, start with 75. But if she is more than 35 years, irrespective of whether she is PCO or non-PCO, 150. क्यों? क्योंकि अगर आपने थ्रेशोल्ड रीच नहीं किया डर के मारे PCO में, तो आपको गोनाडोट्रोफिन का फायदा ही नहीं होगा, फॉलिकल्स रिक्रूट ही नहीं होंगे। You have to reach to that threshold. So if she is more than 35, irrespective of PCO or non-PCO, confidently start with 150 HMG from day 2 of the cycle. इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ मॉनिटरिंग। 2, 3, 4, 5, 6 like your oral ovulations, you are giving 150 or 75 gonadotrophins. Day 7 you are calling her for transvaginal ultrasound. ये डे 7 पे आपका टारगेट क्या होगा, क्या देखना चाहोगे आप? फॉलिकल्स ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर, ये हमारा फोकस होता है।
अगर ये फॉलिकल्स 2 to 3 हैं, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम डोज. 4 to 6 है, डेफिनेटली टेपर. 6 से ज्यादा है तो यू हैव टू लुक फॉर OHSS. पर अगर डे 7 पे आपको 10 मिलीमीटर के फॉलिकल्स ही नहीं दिख रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द डोज बाय 75 से इंक्रीज करना, 225 उसका कर देना. ठीक है. And when the lead follicle in gonadotrophin cycle is 18 millimeter, we ovulate. ओरल ओवुलेशंस में ये 2 मिलीमीटर ज्यादा होता है. यहाँ पे 18 मिलीमीटर पे गोनाडोट्रोफिन्स पे वी गिव ट्रिगर. ना अभी बहुत सारे लोग ओरल के साथ में कंबाइन करना चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है. कितने साइकिल, कितने इंजेक्शंस बचाए आपने ये साइकिल के चार्ट के हिसाब से? कितने डोज कम लगे? कितने डोज कम हुए? 2 है ना? नहीं, 3. आप डे 2 से ओरल ओवुलेशन दे रहे हो, 5-6 को उसको ये दे रहे हो. 3 डोज का कितना कॉस्ट आता है? 400 रुपए भी आप 1 HMG का पकड़ लो तो 1200. नॉट मच. पर अगर आप चाहते हो कि भाई आप लेट्रोजोल के साथ कंबाइन करो तो दिस इज द प्रोटोकॉल. 2, 3, 4, 5, 6 सीसी प्लस लेट्रोजोल, 5, 6, 7, 8 4 दिन गोनाडोट्रोफिन्स देना. एंड हियर योर मॉनिटरिंग स्टार्ट फ्रॉम डे 9 इंस्टेड ऑफ डे 7. ठीक है. एंड डे 9 ऑनवर्ड्स इट इज सेम. आपका फोकस 10 मिलीमीटर फॉलिकल्स पे है, कितने हैं उसके हिसाब से डोज कम करना है, सेम रखना है या बढ़ाना है, वो आपका डिपेंड करेगा. तो ओवुलोजेंस प्लस गोनाडोट्रोफिन्स, दिस इज द प्रोटोकॉल. एंटागोनिस्ट IUI में इसका यूज नहीं होता है. देर आर ओनली 2 इंडिकेशंस कि अगर आपको बहुत सारे फॉलिकल्स तैयार हो गए हैं तो क्या करोगे आप? डोंट टेक डिसीजन ऑन द पेशेंट्स बिहाफ. गॉन आर दोज डेज. डॉक्टर आप भगवान हो, आपको जो उचित लगता है कर लो. ये जो पेशेंट बोल रहा है यही 8 दिन के बाद 10 रिलेटिव लेके आपके सिर पे बैठ जाएगा कि आपने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया. तो ऑप्शन देना है आपको. देर आर 2 ऑप्शंस. कन्वर्ट इट इनटू IVF. आपके पास नहीं है IVF, आई अंडरस्टैंड. यू जस्ट टेल देम, है ना, कन्वर्ट इट इनटू IVF और कैंसल द साइकिल. कैंसिलेशन का क्राइटेरिया क्या होता है गोनाडोट्रोफिन साइकिल में? क्योंकि अगर वो आपने बाय हार्ट कर लिया तो आपका कोई भी पेशेंट को OHSS और मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं होगा. क्या क्राइटेरिया है वेयर यू विल नॉट गिव ट्रिगर एंड यू विल कैंसिल द साइकिल? If the lead follicle, there are 3 lead follicles, don't give trigger. 16 to 18 मिलीमीटर के 3 follicles हैं, you have to cancel the cycle, document it on your case paper. वो बंदी को 6 बच्चे क्यों हुए? क्योंकि डॉक्टर ने बोला था abstain from intercourse, है ना. आप तो ट्रिगर नहीं दोगे, आप तो IUI नहीं करोगे, पर आजकल तो पेशेंट को चैट GPT सारा ट्रीटमेंट बता देता है ना. If she does not abstain from intercourse, she will go into OHSS also, she will go into multiple pregnancy as well. So by heart कर लेना है कि अगर 3 लीड फॉलिकल है, 16 to 18 मिलीमीटर के 3 फॉलिकल है, तो you have to document on the case paper patient has been advised to abstain from intercourse and the cycle is cancelled. उसके बाद पेशेंट जो करे वो उसके ऊपर है. पर हाँ 6 फॉलिकल है, 8 फॉलिकल है तो उसको कन्वर्शन टू IVF का भी आपको ऑप्शन देना है. और फाइल पे डॉक्यूमेंट कर देना कि ऑप्शंस आर गिवन टू द पेशेंट, शी विल गो बैक एंड डिसाइड और व्हाटएवर. 2 लाइन फाइल पे लिख के सेव योर स्किन. एंटागोनिस्ट अगर कन्वर्शन कर रहे हो तो भी ऐड. और इफ यू वांट टू अवॉइड वीकेंड IUI, आपका एम्ब्रियोलॉजी छुट्टी पे है, आप कहीं बाहर गांव गए हुए हो, सो यू ऐड along with HMG you can add antagonist. तो आपका फॉलिकल उसी साइज पे बना रहता है. तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन एंटागोनिस्ट प्लस HMG भी देना है, सिर्फ एंटागोनिस्ट नहीं देना है. HMG प्लस एंटागोनिस्ट देके आप उसका वीकेंड IUI अवॉइड कर सकते हो. तो ये 2 ही इंडिकेशन है ऑफ एंटागोनिस्ट इन IUI साइकिल. OHSS मैंने इसमें इन डेप्थ नहीं लिया है, but I really wish you all should know the management of OHSS irrespective of whether you are doing oral ovulation cycle or gonadotropins. Gonadotropins का हम सबको मन में सिर्फ बहुत डर है क्योंकि ignorance is bliss here.
कि भाई लेट्रोजोल से तो होगा नहीं, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली यूज कर लेते हैं. इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. माइल्ड डेफिनेटली ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है. मॉडरेट डिपेंड्स, बहुत दूर रहती है, बाहर गांव की पेशेंट है तो एडमिट करना कि ओपीडी करना. सीवियर ऑफ कोर्स यू हैव टू एडमिट एंड सम केसेस माइट नीड आईसीयू. पर लकीली अभी आईवीएफ में हम सब लोग ओएचएसएस फ्री क्लिनिक हैं, क्योंकि पीसीओ में भी हम लोग एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एगोनिस्ट ट्रिगर देते हैं एंड वी फ्रीज ऑल द एम्ब्रियोस. मुझे अभी भी याद है 15 साल पहले तब एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल आया नहीं था. वी ऑल यूज टू डू एगोनिस्ट प्रोटोकॉल एंड मेरा सेंटर का फर्स्ट साइकिल एंड आई लैंडेड अप विद सीवियर ओएचएसएस. द नाइटमेयर जो तुम लोगों को सीवियर पीपीएस से होता है वो हम लोगों को ओएचएसएस से होता है. द नाइटमेयर आई हैव गॉन थ्रू मैनेजिंग दैट पेशेंट इज रियली अनबिलीवेबल. पर आईवीएफ में ओएचएसएस फ्री क्लिनिक है. आईयूआई में अगर आप ट्रिगर नहीं दोगे, यू नो व्हेन टू कैंसिल द साइकिल, सो यू विल हैव ओएचएसएस फ्री आईयूआई क्लिनिक एज वेल. नाउ दिस इज द स्लाइड फॉर एवरीवन, है ना. हम लोग जल्दी से आईवीएफ के पास भेजना पसंद ही नहीं करते हैं, पर वी ऑल शुड नो कि अप्रोप्रिएट टाइम पे कब रेफर करना है. क्योंकि आप बार बार आईयूआई कर रहे हैं, आप उसका ओवेरियन रिजर्व डिप्लीट कर रहे हो, आप उसकी एज बढ़ा रहे हो, आप उसकी एक क्वालिटी भी कम कर रहे हो. तो उसको सही समय पे आप आईवीएफ के पास रेफर करो, बिकॉज देन शी हैज फेयर चांसेस ऑफ अचीविंग pregnancy in that IVF cycle. So stimulation protocol, I have told you in depth. If there are any questions, now I am open to the question and answer session, and then Dr. Kersi will be taking the first andrology session. So any questions related to the stimulation protocols?